Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing the revision of our chapter Robin Hood and John Little because 11th of December you have a test of this chapter. Firstly, we'll start the revision with bookwork. Okay? See, open page number 78. Complete this table with what happened immediately before or after the events mentioned. जो आपको इवेंट्स मेंशन किए हुए हैं उससे पहले या बाद में क्या हुआ आपको वो बताना है इमीडिएटली. ओके, कि इमीडिएटली बाद में या पहले क्या हुआ. द स्ट्रेंजर रिफ्यूज टू लेट रॉबिन पास. स्ट्रेंजर ने रॉबिन को जाने से रोका. उससे पहले क्या हुआ? रॉबिन आस्क्ड द मैन टू स्टॉप एंड लेट हिम पास. ओके. Second, Robin cut a branch of an oak tree to use as a staff. रॉबिन ने क्या किया? ब्रांच को कट किया. किसकी ब्रांच को? ओक ट्री को. उसे एज अ स्टाफ यूज़ करने के लिए. उसके बाद उसने क्या किया? He fought with the stranger. वो स्ट्रेंजर के साथ लड़ा. रॉबिन blew his horn thrice. रॉबिन ने अपने हॉर्न को 3 बार ब्लू किया. देन क्या हुआ? All the merry men surrounded रॉबिन एंड जॉन लिटिल. जितने भी मैरी मैन थे वो सब रॉबिन और जॉन लिटिल के आगे पीछे आके इकट्ठे हो गए. रॉबिन आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू जॉइन हिज बैंड. रॉबिन ने स्ट्रेंजर से उसका बैंड ज्वाइन करने के लिए पूछा. और उसके बाद क्या हुआ? ही सैड दैट ही वुड जॉइन इफ़ रॉबिन कुड शूट बेटर दैन हिम. उसने क्या कहा कि वो रॉबिन के बैंड को तभी ज्वाइन करेगा यदि वो उससे बेटर शूट कर सके. Okay, John Little happily agreed to be a part of Robin's band of men. John Little खुशी से रॉबिन के बैंड को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो गया. उससे पहले क्या हुआ था? रॉबिन शूट एन एरो विच स्पिल्ड जॉन लिटिल्स एरो फ्रॉम द मिडल. रॉबिन ने एरो से किसको शूट किया? जहाँ पे जॉन लिटिल का एरो पहले से मिडल में था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक वर्क. Open page number 80. Simple present tense. Where we will use simple present tense? Used to talk about something that is true now, something that happen regularly, or something that is always true. हम simple present tense का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ सच हो और रेगुलर हैपन हो और हमेशा ट्रू हो. Simple past tense used to talk about something that happened in the past and is finished. कोई चीज़ जो पास्ट में हुई थी और अब फिनिश हो गई है. Present continuous tense used to talk about something that is happening now and is not finished. जो अभी हो रही है when we are talking and is not finished और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. Past continuous tense used to talk about something that was happening at the same point of time in the past. जो पास्ट में किसी टाइम में चल रही थी. Future time used to talk about something that is going to happen in the future. कोई चीज़ जो फ्यूचर में हुई है. On the basis of this you will do this practice exercise A and B. Now come to the vocabulary. I will blow my horn thrice if I need any help. Giraffe are the only animals to be born with horns. Horn and horns. The highlighted words have the same sound, same spelling, but different meaning. Such words are known as homonymous. Homonymous words क्या होते हैं? जिसकी स्पेलिंग और साउंड बिल्कुल सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है. समटाइम्स स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है बट साउंड सेम होता है. ओके, सी यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल लाइक डिड यू वॉच द फुटबॉल मैच लास्ट नाइट. यहाँ वॉच का मीनिंग क्या है? देखने से है, ना कि टाइम को शो करने से. ओके, find words from the play. An exciting experience means adventure. Boring or uninteresting, dull. Courage and fearless, brave. Trained in something or doing something very well, skilled. Showing happiness or satisfaction, pleasant. Faithful means loyal. Okay, you have to do the practice of these exercise in bookwork. Now come to the notebook work. Firstly, you will do difficult words. Mounts, stubborn, archery, earnestly, reeling, splattering, weights, tumble,
Torrent, extending. Now come to the word meaning. Outlay means person who often breaks the laws of a land. एक person जो land के law को break करता है. Band, group. Mounts, climbs. Stubborn, refusing to listen to other. दूसरे को सुनने से मना कर देना. Staff, a thick long stick. Archery, the art of shooting arrows with a bow. एक बो से शूटिंग की आर्ट करना. अर्नेस्टली, सीरियसली, मतलब किसी चीज़ को सीरियस लेना. स्प्लटरिंग, स्पीकिंग विद डिफ़िकल्टी एंड मेकिंग सॉफ्ट स्पिटिंग साउंड्स, मतलब बोलने में डिफ़िकल्टी होना और सॉफ्ट स्पिटिंग साउंड निकालना. वेट्स, वॉक्स थ्रू वाटर विच इज़ नॉट वेरी डीप, पानी के थ्रू चलना जो ज़्यादा गहरा नहीं है. नोटिस, म्यूजिकल साउंड्स. टम्बल, फॉल डाउन सडनली, अचानक गिर जाना. पासेस, स्टॉप्स. टारेंट, अ क्रूल लीडर, एक ऐसा लीडर जो कि अपने किंगडम में क्रूलनेस दिखाता है. सेटल विद अस मीन्स डील विद अस बाय फाइटिंग, फाइटिंग के साथ डील करना. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. वेल, you are very stubborn. I will show you how we deal with fellows like you. Who said these words to whom? Robin Hood said this to John Little. ये वर्ड रॉबिन हुड ने किससे कहे? जॉन लिटिल से. Why did he say this? उसने ये वर्ड्स कहे क्यों थे? When Robin saw John Little start crossing the bridge at the same time as him. जब रॉबिन ने देखा कि जॉन लिटिल उसी टाइम ब्रिज क्रॉस कर रहा था जब वो कर रहा था, ही आस्क्ड हिम टू स्टॉप, उसने उसे रुकने के लिए कहा, एंड लेट हिम पास फर्स्ट, कि उसको पहले वो जाने दे. व्हाट डिड ही डू आफ्टर सेइंग दिस? ऐसा कहने के बाद उसने क्या किया? रॉबिन लिफ्टेड हिज बो टू अटैक जॉन लिटिल. रॉबिन ने अपनी बो को उठाया जॉन लिटिल पे अटैक करने के लिए. व्हाट आर यू डूइंग फाइन फिलो? हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम? ये वर्ड्स किसने कहे? जॉन लिटिल सैड दीज वर्ड्स टू रॉबिन हुड. ये वर्ड्स जॉन लिटिल ने रॉबिन हुड से कहे थे. व्हाट वॉज द फाइन फिलो डूइंग? फाइन फिलो क्या कर रहे थे? रॉबिन हुड वॉज स्विमिंग इन द स्ट्रीम बिलो द ब्रिज. रॉबिन हुड क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर रहे थे स्ट्रीम में, बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे. व्हाट डिड द फाइन फिलो से इन रिप्लाई? फाइन फिलो ने रिप्लाई में क्या कहा? Robin Hood replied that he was swimming. He also added that this was the first time. Robin Hood ने क्या कहा कि वो स्विमिंग कर रहा है. उसने ये भी ऐड किया कि this was the first time, कि फर्स्ट टाइम है that he had been defeated, कि वो हारा हो. Nobody gives me any work. Everybody is afraid of me. I often go hungry. Who said these words? John Little said these words. Why did he say so? When Robin asked him where he was employed. What happened after he said this? Robin invited John to meet his merry man. Later Robin asked him if he would like to join this group. तो रॉबिन क्या करता है? उसको इनवाइट करता है अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए. Describe how John Little and Robin Hood earned each other's respect. जॉन लिटिल और रॉबिन हुड ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे गेन की? Robin, who had never lost a fight before, was very impressed with the John's skills and invited him to meet his group of merry men. रॉबिन ने क्या किया? जो कभी नहीं हारता था, वो जॉन लिटिल के वक्त से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसे क्या कहा कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो. Robin's arrow spilled John Little arrow from the center. John Little was impressed with Robin's sense of fairness and great skill at archery and accepted him as his leader. रॉबिन ने क्या किया था? जॉन लिटिल के एरो को हिट कर दिया था और जॉन लिटिल इम्प्रेस होके उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया. वाई डिड जॉन लिटिल नॉट गेट एनी वर्क? जॉन लिटिल को कोई वर्क क्यों नहीं मिला? जॉन लिटिल वॉज अ गिग्नेटिक एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैन. जो जॉन लिटिल था वो बहुत ही बिग और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैन था. पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम. लोग उससे डरते थे. इन एडिशन ही डिड नॉट ईजिली एक्सेप्ट एनी वंस अथॉरिटी ओवर हिम. और वो जल्दी से किसी की अथॉरिटी अपने ऊपर एक्सेप्ट भी नहीं करता था. दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट वर्क. ये उसे वर्क करने के लिए, वर्क मिलने के लिए डिफ़िकल्ट बना देता था. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर रॉबिन हुड एंड जॉन लिटिल एंड नाउ यू कैन गिव द टेस्ट वेरी इजली. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.